See, the Nitya Artist Center actually started a couple of years back, but last year the center space was given to the Artist Center, a very decades-old institution, which was in Kalagoda. So all the exhibitions last year till till early this year or last year were put up by the Artist Center, and it was the space was utilized by the Artist Center. Now, as Artist Center shifted to Kalagoda, so Nitya Artist Center activities continue, which is actually not only art promotion, art, culture, and literature, the promotion of it. Some workshops, book publications, all these events happen here. So this space, as I say, it is located in the center in Prabhadevi, the low road leading to South Mumbai on the main road. So location wise, it will give a very good exposure to the artists, where we can get the some organic footfalls being on the main road, and completely glass facade structure. People can see the painting even outside, which are displayed here in the artist center. And this artist center, even though it started by us, myself and my wife Meenakshi Patil, this will be run as a public gallery only. It will be available on very nominal weekly rate to the artist. The purpose is to create the center public space for the artists, because we have very few public art galleries. The well-known galleries, of course, have the waiting list, huge waiting list of 3-4 years, 5 years. So, as there is a lack of infrastructure, the artist center, the Nitya Artist Center, will be developed as the public art gallery. And this is as a Nitya Artist Center, this is our first exhibition where 3 artists are participating. P. Nana, Singapore-based sculptor and painter, who is represented here by some 9 paintings and some 3 sculptures which are in bronze. Nana is one of the well-known artists in Singapore, whose collection is there even in the with the Museum of Singapore and Singapore government. The second artist is Ramesh Gorjala. Of course, Ramesh Gorjala don't need any introduction. He is the artist from Hyderabad, Tirupati, known for his works, the spiritual work done in some traditional style, fusing with the modern style. He is represented here by his 3 sculptures, wooden sculptures. And third artist is H.R. Das. H.R. Das studied at Khairagad College of Art, and he is also known for his trademark bull. He is the H.R. Das is the first artist rather in India who started painting the colorful bull. And the way we look at his career in the last decade and a half, it is been highly successful kind of journey for Hari H.R. Das. We call him lovingly Hari. His name is itself Hari. So these 3 artists are represented here for the by the Nitya Artist Center in the first show, and we hope many more shows will be coming. Thank you. हम जानते हैं कि जो मुंबई का आर्ट्स है मुंबई के कोने में स्थित है, और चूंकि ये बहुत खुशी की बात है कि जो आर्ट गैलरी यहाँ खुली है नित्य आर्ट गैलरी और सेंटर में है, अगर लोगों को अपना एग्जीबिशन करना है, अपनी कला का प्रदर्शन करना है, तो वो किस प्रकार आपसे संपर्क करेंगे? क्या वेबसाइट अवेलेबल है? किस तरह से वो करेंगे? नित्या आर्टिस्ट सेंटर सेंट्रली लोकेटेड है. अभी जस्ट हमारे वन मोर चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट हियर वाज विलास शिंदे, वेरी सीनियर आर्टिस्ट. Every year from last 2 years, Vilas used to come to Artist Center driving by road, by car. It used to take 1.5 hours from Powai to Prabhadevi. As now metro started that line, from Powai he reached to Prabhadevi, and just metro station is opposite Nitya Artist Center. Within 30 minutes he reached here. The space is now such a centrally located, by even public transport one can reach here from far away places like Powai to Prabhadevi in 30 minutes. South Bombay is hardly 15-20 minutes from here. So the space is centrally located. Nitya Artist Center is already having website which is there from couple of years, and booking already happens from the website. We have the social media, Facebook, Instagram accounts. They can approach from that. Even website, there is an online application. They can fill up and they can plan their shows.
मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जब पहला शो में मेरा काम है और मैं हमेशा बुल के ऊपर काम करता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग्स करता हूँ वो एकदम गांव से ही है। और शुरू से गाय ये उसी से रिलेटेड जो भी है कैटल के साथ, तो गांव से रिलेटेड, तो उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। सर, जो हमारा हिंदू धर्म में गाय को माता मानते हैं और जो हमारे बैल हैं उनको जो है नंदी भगवान के रूप में देखते हैं, तो क्या इसके पीछे ये थॉट है या फिर ये साधारण सा एक सोच है जो हम गांव में देखते हैं? एक्चुअली मैं शुरू में जो बनाता था नंदी से, फिर धीरे धीरे उसको फैमिली आया। मेरे कुछ पेंटिंग में जो सीयू है उसका फैमिली पार्वती का फैमिली के साथ है, और बाद में ये और भी डेवलप होते हो तो जो जो उसका जो फीलिंग्स है, ह्यूमन्स फीलिंग्स है, वो मैं गाय भैंस का है, उसका जो प्रेम है, उसका जो प्यार है, उसका बच्चे का जो है, उसका बच्चे के साथ, तो ये उनको पास है। जब मेरे काम में धीरे धीरे आया, क्योंकि मेरे फैमिली के, मैं जब बैचलर था तब नंदी बनाता था, धीरे धीरे फैमिली जैसे मेरे बढ़ने लगा वो फीलिंग्स मुझे आने लगा, ये बच्चे के साथ कैसे होता है फीलिंग्स, तो मेरे इसमें भी एक पेंटिंग आपके पीछे है, जरा आप उसके बारे में कुछ अगर हमारे दर्शकों को बता सकें, क्योंकि दर्शक भी इसे देख रहे हैं, जरा सा कुछ बता सकें। एक्चुअली ये नंदी है, तो उसके पास ही यही वही बना है नंदी के, तो ये सिंगल है। और कुछ पिक्चर्स है मेरे उसके पास बच्चे के साथ भी है, और सिर्फ वो नहीं, एकदम बच्चे भी बोल है जो उसका जो फीलिंग्स है आगे। और राजेंद्र सर के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? राजेंद्र सर से मेरे बहुत पहले का पहचान है, और ये तो बहुत खुशी की बात है, उन्होंने इंडियन आर्ट फेस्टिवल के साथ साथ ये भी एक नया गैलरी शुरू की है। ये आर्टिस्ट लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। शुभकामना देना चाहेंगे नृत्य आर्टिस्ट सेंटर को? नृत्य आर्टिस्ट सेंटर के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाई है रायन जी को, मीनाक्षी जी को और उनके पूरे परिवार को, और बुद्ध का जो बहुत बड़ा एक दूसरा परिवार है जो कला परिवार है, जिसमें सैकड़ों लोग हैं, तो बहुत बड़ा इनका परिवार है। उस परिवार के लिए एक जगह इन्होंने और बना दी, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि इंडिया आर्ट फेस्टिवल है, मैगज़ीन है जो निकाल रहे हैं ये, तो कला के लिए जो जगह बनाई है इन्होंने, और ये गैलरी बनाएगी मुंबई में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सच प्लेसेस जहाँ लोग मिलें, बैठें, बातें करें, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि इनके मन में भी बात होगी कि यहाँ पर कभी कोई कविता पाठ हो जाएगा, कभी कोई टॉक हो जाएगी। उससे होता ये है कि वैसे कार्यक्रम करने से गैलरी को थोड़ा दूसरी तरह का जीवन मिलता है ना, खाली वो कोई खरीद बिक्री की जगह नहीं रह जाती, उसके वाइब्रेशंस बदल जाते हैं, तरंगें बदल जाती हैं, तो ये सब करने वाले हैं। एक बात सर आपने कहा था, ये उत्सव भी है और विचार भी है। हाँ बिल्कुल, उस बात को हमारे दर्शकों के साथ। तो उत्सव देखिए, उसको मैं बराबर याद रखता हूँ और कहता हूँ। अब हम आज यहाँ के इकट्ठा हैं, उत्सव ही तो बना रहे हैं, मिल रहे हैं मित्रों से, प्रदर्शनी है, चित्र हैं, बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने कहा था ना कि ये उत्सव ख़त्म होते ही विचार शुरू हो जाएगा, अभी इससे शुरू हो जाएगा। फिर जब हम लौटेंगे तो हम क्या लेकर लौटेंगे? हम तो कुछ बातें लेकर लौटेंगे यहाँ से, जो हमने आपस में की हैं, दूसरों को सुना है, हमने कुछ कहा है, और ये इमेजेस याद आएंगी। इनको लेकर तो विचार ही होता है ना, कला तो विचार उत्पन्न करती है, वो खाली कोई शोभा की चीज़ तो है नहीं कि आपने देखा और छोड़ दिया। इसलिए कहता हूँ कि उत्सव भी और विचार भी है। पिछले करीब 1-2 सालों से मैंने राजेंद्र सर को देखा है कि इन्होंने इस कला को, जो आर्ट्स को जनमानस तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। जहां लोग एक किराया नहीं दे सकते, ये काफ़ी आर्टिस्ट को मिलाते हैं, 10-20 लोग को मिला के एक शो करते हैं, जिससे आर्टिस्ट जो है अपने शो कर पाते हैं और जनमानस तक ये जा रहा है। इनकी इस जो विचारधारा को किस प्रकार देखें? इस विचारधारा की तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है, यही कह सकता हूँ कि इसी की तो ज़रूरत है। देखिए, जिनके नाम आज हम सुनते हैं बड़े कलाकारों के, कभी तो वो भी युवा थे, उनको किसी ने जगह दी होगी तभी तो आगे बढ़ पाए हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है जगह देना है, वो बहुत, आपने सही कहा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं इसको इसी रूप में देख रहा हूँ कि अब फिर बहुत सारे कलाकारों को जगह मिलेगी, नयों को, पुरानों को भी, फिर जो बिल्कुल युवा है उनको भी, जो थोड़ा प्रौढ़ है उनको भी, बुजुर्गों को भी, तो ये जगह, लेकिन नए के लिए
क्योंकि मैंने तो कभी एक कविता ही लिखी थी, नए को दो जगह, जहाँ खाली हो गया है कुछ वहाँ तुम नए को दो जगह। फिर नए को जगह नहीं दोगे तो फिर ताजगी कहाँ से आएगी।